हाँ जी, क्या कर दिया था? क्या कह रहे हो? टेबल? ओहो! अच्छा। हाँ जी। होमवर्क बताओ फिर। हम्म, देखिए तो बताओ। हम्म, हम्म, बोलो बोलो बताओ। लिखो, अपील की हेडिंग बनाओ। नहीं करके आए तो फिर बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे? फिर बोलो तो सही। और कैसे, क्या पूछूं? पहले क्वेश्चन में जो है क्या कहते हैं, पहली अपील अगर अभी चल रही है तो हाँ, अभी पहली अपील का डिसीजन नहीं आया तो हम सेकंड अपील ला सकते हैं। रेस्ट जुडिकेटा कैसे लगेगा? तब नहीं लगेगा। अगर डिग्री आ जाती है, रेस्ट जुडिकेटा पेंडेंसी पे नहीं लगता है। रेस्ट जुडिकेटा एक चीज खत्म हो जाएगी तो उस चीज पे दोबारा शुरू करेंगे तब लगता है। आप बिल्कुल ही फ्रेशली आपने शुरू कर दिया है। रेस्ट जुडिकेटा, रेस्ट सब जुडिस की बात नहीं कर रहे। एक चीज प्रॉपरली एडजुडिकेटेड हो जाएगी उसके बाद तो फिर फ्रेश पे लगेगी। एक चीज पेंडिंग है, वो दूसरी पेंडिंग है, तो रेस्ट जुडिकेटा थोड़ी लगेगा। हाँ जी, लिखो हेडिंग बनाओ अपील की। समझते हो? लिखो जरा। लिखो, द जनरल रूल इज दैट ऑन एन अपील by one of several plaintiffs and defendants, comma, an appellate court can reverse or vary the decree of the trial court only in favor of the party appealing, comma, however, comma, wide order 41 rule 4, the legislature provides an exception to the above said rule. Full stop. Rule 4 is an enabling provision enables the appellate court with the power to make an appropriate order
needed in the interest of justice by reversing or varying the decree in favor of all the plaintiffs or defendants as the case may be. Full stop. That from the point hereinafter, comma, the question arises that in case where there are number of plaintiffs or defendants in whose favor right to file an appeal arised. An appeal arised. But actually appealed by a single person, comma, whether the decision of the appellate court shall bar the other said plaintiffs or defendants to file any separate appeal. Full stop. That Rule 4 of Order 41 is based upon following two consideration. दो बिंदी डैश नंबर 1 लिखो to give the appellate court full power to do justice to all parties, comma, whether before it or not. Full stop. Number 2, to prevent contradictory decisions in the matter in the same suit. Full stop. पैराग्राफ बनाओ नीचे जरा.
that the main contention arises in the ground that if the appeal has been dismissed upon technical grounds like bar of limitation, like bar of limitation, etc. Since in the cases question may arise as to whether the dismissal of that appeal would result into the bar of res judicata upon the pending appeal, comma, here the question shall be considered upon the two following tests. दो बिंदी डैश लगाओ, नीचे लिखो नंबर 1, लिखो वेदर, बड़े ध्यान से, वेदर द फॉर्मर अपील which has been dismissed can be said to have been a former suit for the purpose of section 11, full stop. Number 2, whether such former appeal can be said to have been heard and finally decided, even though it was dismissed on technical grounds. केस लो लिखो नीचे, नरहरि एंड अदर्स वर्सेस शंकर एंड अदर्स. 1950 सुप्रीम कोर्ट. कल फैक्ट्स लिखवा दी थी इसके, ठीक है ना, वो देख लेना कल. लिखो जी, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट since the appeal has been filed from
single decree arises out of single suit, comma, the appeal will not have distinct identity, comma, moreover के बाद फिर से comma, from such decree the single appeal from one of the party is sufficient, comma, in which the court could have decided the appeal for all the parties. Full stop. लिखो जी नेक्स्ट केस, शिवधन सिंह, वो जो कल लिखा है रेफरेंस लिख लो, शिवधन सिंह वर्सेस दरियाव कमल। इस पे क्वेश्चन लिख लो एक, या फिर इश्यू या क्वेश्चन व्हाटसोएवर, सिंपल कोटेशन बना लो, सर्कमस्टांसेस where circumstances where appeal dismissed on technical grounds, क्वेश्चन मार्क डाल लो, लिखो जरा नीचे, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट where suit decided on merits and the appeal of the suit is dismissed on the technical grounds, that is, the limitation period or non-appearance of parties etc. will be deemed as finally decided and confirm the matter decided by the court in decree, comma, दो पे छोड़ गई, comma, and again there is appeal which lies on that issue, comma, it will be operated as res judicata upon any
subsequent appeal, full stop. But in the cases where the suit is dismissed on technical grounds, and appeal also dismissed, technically, in such cases it will not be considered as finally decided, and therefore, comma, not subject to the doctrine of res judicata upon any subsequent appeal. ठीक है जी, देखो जी, आओ जरा एक बार ऑर्डर 41 रूल 4 के दर्शन कर लो एक बार। जैसे ही नाहर सिंह का केस खोलते वैसे ही सबसे पहली क्वेरी ऑर्डर 41 रूल 4 मिलती है आपको। निकल गया, देखो जी क्या लिखा है, ऑर्डर 41 रूल 4, ये सिर्फ हम रेस जुडिकेटा ऑन अपील्स के लिए पढ़ रहे हैं। वेयर देर आर, मैं सीधा सिंपल पढ़ रहा हूं, वेयर देर आर मोर प्लेंटिफ्स और मोर डिफेंडेंट्स, जब एक केस के अंदर एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स हैं और एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स है देन वन। ठीक हो गया जी, इन वन सूट, एक सूट में, एंड द डिक्री अपील्ड फ्रॉम, ये लो जी केस क्या है, प्लेंटिफ्स वर्सेस डिफेंडेंट्स। ठीक है जी, और डिक्रीड हो चुका है, डिक्री आ चुकी है। ठीक हो गया, चलो जी, अपील्ड फ्रॉम proceeds on any ground common to all the plaintiffs or to all the defendants। देखो ये कॉमन लैंग्वेज लिख रहे हैं, क्योंकि अपील का राइट देखो अगर मिलना है तो वो प्लेंटिफ्स को भी मिल सकता है और डिफेंडेंट्स को भी मिल सकता है। डन हो गया, ठीक है जी। तो क्या है, सभी के पास जो है समझ लो अपने हिसाब से, अगर आप प्लेंटिफ की तरफ से अपील डलवा रहे हो, ठीक है ना, तो प्लेंटिफ की तरफ से समझ लो, अगर डिफेंडेंट की तरफ से अपील डलवा रहे हो आप अपने माइंड में, इमेजिनेशन में, ठीक है ना, तो डिफेंडेंट की तरफ से समझ लो। ठीक है जी, और सरकमस्टांस क्या है कि सबको कॉमन क्वेश्चन मिलेगा, कॉमन ग्राउंड मिलेगा किस चीज का, अपील डालने का। ठीक है ना, अगेन रैंडम ग्राउंड नहीं होते, ग्राउंड फिक्स हैं अपील डालने के। ये बेसिकली अपील के चैप्टर में लिखा होगा, हम एक दर्शन भी कर चुके हैं। ठीक है ना, अगर सीपीसी ने मना कर दिया कि सिविल की अपील इन पर्टिकुलर पॉइंट में नहीं जाएगी, किसी भी बेरेक्ट में नहीं जा सकती। ठीक हो गया, तो रैंडमली ये सोच के कोई ना बैठे कि भाई अपील है खाम खाए चली जाएगी, ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक रहता है अपील का। ठीक हो गया, चलो, तो जो भी क्वेश्चन है वो सीपीसी का डायरेक्ट बताएगा। ठीक है जी, वो कैसा है, वो कॉमन है। To all the plaintiffs or the defendants, any one of the plaintiffs or of the defendants may appeal from
दी होल डिक्री। कॉमन क्वेश्चन, कॉमन ग्राउंड आ गया सभी के पास, ठीक है जी। अगर मान लो प्लेंटिफ की तरफ से अपील डलवा रहे हो तो किसी एक प्लेंटिफ के द्वारा अपील डल जाएगी, ठीक है ना, डाल दो। या फिर किसी डिफेंडेंट की तरफ से अपील डलवा रहे हो, मतलब डिफेंडेंट्स की तरफ से अपील का ग्राउंड बनवा रहे हो तो किसी एक डिफेंडेंट के थ्रू आप अपील डाल लो, ठीक हो गया। सरकमस्टांस समझ गए। ढेर सारे प्लेंटिव्स, ठीक है जी, डिक्री आ चुकी है और अपील का ग्राउंड सेम है, ठीक है जी। एक प्लेंटिफ या फिर एक डिफेंडेंट जो है वो अपील डाल देता है। अब ना, appeal from the whole of the decree and thereupon the appellate court may reverse or vary the decree। चलो जी, जो भी ये अपील आई है, अब अपीलेट कोर्ट या तो रिवर्स कर दे इस अपील में ये जो डिक्री है इसको, या फिर इसको वेरी कर दे। इन फेवर ऑफ ऑल द प्लेंटिव्स और डिफेंडेंट्स, ठीक है जी। रिवर्स हो या फिर वेरी हो, सारे के सारे डिफेंडेंट्स के फेवर में या फिर सारे के सारे प्लेंटिव्स के फेवर में, एज द केस में भी, ठीक है जी, जो भी केस हो। ठीक है जी। देखो जी, अगर ये सरकमस्टांसिस हो जाता है, ध्यान रखो, अब दूसरी अपील, सेकंड अपील नहीं, सेकंड अपील, ये सेकंड अपील कहना गलत हो जाएगा, सबसीक्वेंट अपील नहीं डल सकती, इस बार है, ठीक हो गया। चाहे प्लेंटिव डाले चाहे डिफेंडेंट डाले, क्योंकि सरकमस्टांस क्या है, कॉमन ग्राउंड है। और अपीलेट कोर्ट ने क्या किया है, अगर वो रिवर्स होनी है तो सभी के लिए रिवर्स कर दी है, अगर वेरी करनी है तो सभी के लिए वेरी कर दी है। वेरी का मतलब कंफर्म कर, ठीक होगा जी। जब हो ही चुका है, सबके लिए हो चुका है और ग्राउंड भी कॉमन है, ठीक है जी, अलग से कहां कहां से डलेगा, ठीक हो गया। सिंपल सी, अगर सूट के समय या सूट डिसाइड हो जाए वहां पर रेस जुडिकेटा की बात आएगी तो कहां, सेक्शन 11 में जाएंगे। जब एक अपील एक बार डिसाइड हो जाए, ठीक है जी, अगेन सेकंड अपील नहीं, सब्सिक्वेंट अपील जब जाएगी तो उसका बार हम ऑर्डर 41 रूल 4 में कर रहे हैं, ठीक हो गया, सिंपल हो गया, जनरल रूल। ये पॉइंट समझ में आया। देखो ये मेन चीज है, कॉमन ग्राउंड, ठीक है जी, और रिवर्स और वेरी सभी के लिए। क्या अपीलेट कोर्ट के पास पावर है, जिन्होंने BNSS पढ़ी है, क्या अपीलेट कोर्ट के पास पावर है कि वो कोई भी फैसला लेना हो अपील के विषय में वो ले सकती है। अपील को खुद सुनना है सुन सकती है, अपील को वापस रिवर्स करके भेजना हो उसी कोर्ट के पास कि इसको दोबारा सुनो कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन फ्रेम कर दे, ठीक है जी, सिंपल, सर्टिफिकेट दे दे ऊपर भेज दे, सिंपल है। यहां पर भी सेम है, जो अपीलेट कोर्ट है उसके पास पावर है यहां पर, अगर वो ऐसा सरकमस्टांस क्रिएट कर सकते हैं तो कर देंगे। मान लो कोई प्लेंटिफ है या फिर डिफेंडेंट है, कोई सब्सिक्वेंट अपील डाल रहा है लेकिन कोई कॉमन ग्राउंड ऑफ अपील नहीं, अलग है, क्या उस पर रेसिडिकेट लगाएंगे, क्या उसके बार लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। इसकी इंटरप्रिटेशन इस हिसाब से चलेगी, ठीक हो गया। चलो जी, ये हो गया आपका जनरल रूल, ठीक है जी। फिर इसके बाद हमने शोधन सिंह में किया। देखो जी, इसमें क्या हुआ है, ये लो जी, सूट डला, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, ठीक है जी, सूट डिक्रीड, ठीक, अपील डली, अपीलेंट
APL कर देता हूं, ठीक है ना, वर्सेस रिस्पोंडेंट। ठीक हो गया। ये जो अपील है, बताओ क्या इस पे रेसिडिकेटा लगाओगे? ग्राउंड बनता है, अपील का ग्राउंड बनता है। क्या रेसिडिकेटा का सवाल है? सही, वेरी गुड, ठीक है। देखो अब इसके अंदर क्या होगा, अपील जो है वो टेक्निकल ग्राउंड पे डिसमिस करती है। लेट्स से लिमिटेशन का सवाल था, लिमिटेशन का सवाल पूरा सुना कोर्ट ने, पूरा सुने बिना तो लिमिटेशन डिसाइड नहीं होगा, या हो सकता है? ठीक है ना, पूरा वो कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ती है, दिनों का हिसाब किताब निकालना पड़ता है, छुट्टियां निकालेंगे, और जो छुट्टी नहीं है उनको रखेंगे, ठीक है जी, पर छुट्टी नहीं है जिनको रखा है उनमें से भी वो दिन निकाल देंगे जिसके लिए एक्सप्लेनेशन आ गई। तो लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। लिमिटेशन का ग्राउंड कंसीडर करने के बाद जो है डिसमिस करिए। ये अपीलेंट जो है दोबारा से सब्सिक्वेंट अपील लेकर आ गया है, ठीक है जी, सेम सेम क्वेश्चन, ठीक है जी। तो ये लिमिटेशन का दोबारा थोड़ी ना करेगी, या क्या लगता है दोबारा करेगी क्या? ठीक हो गया, सिंपल, बार लग जाएगा, ठीक है ना। इसको रेसिडी कट्टा कहना चाह रहे हो, कहो, बिल्कुल कहो। ठीक हो गया, किसी को कोई क्वेरी तो नहीं माइंड में, पूछ लेना अपना। सही, डन। चलो चलो जरा दूसरा सरकमस्टांस कर लेते हैं। दूसरे सरकमस्टांस में क्या कह रहा है, शिवधन सिंह की डिक्टेशन के अकॉर्डिंग ही। चलो जी, प्लेंटिव वर्सेस डिफेंडेंट, इधर सूट था ना, ठीक है, प्लेंटिव वर्सेस डिफेंडेंट। चलो जी, प्लेंटिव वर्सेस डिफेंडेंट में ये जो सूट है ये टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर, टेक्निकल जी लिख देता हूं, जीडी, ये डिसमिस हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद अपील गई, अपीलेंट वर्सेस रिस्पोंडेंट, ठीक है ना। ये अपील भी आपकी टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर चली गई, डिसमिस हो गई। ठीक हो गया, सिंपल है। चलो अब ये क्या करता है, अपील डालता है, सबसीक्वेंट अपील। अपीलेंट वर्सेस रिस्पोंडेंट। यहां पर क्या कह रहे हैं कि यहां पर हम रेस जुडिकेटा नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड हुआ ही नहीं है, ये केस ही ना हुआ। ठीक हो गया, आपने शोधन सिंह के अंदर ये डिक्टेशन करी, आप जो ना, जो अपना नरहरि वाला है वो जनरल है, नरहरि वाला ये जो ऊपर है, सिंपल हो गया। चलो एक केस लो लिखो, मैं फैक्ट्स लिखवा रहा हूं, वो घर से करना, उसको सोल्व करके लाना, जो सवाल वगैरह रहेगा वो अभी पूछ लेना, आंसर पूछने की बजाय। लिखो बजरंग, ये समझ में आया क्या आपको? ये डन। चलो लिखो बजरंग लाल रुइया, RUIA, रुइया एंड अदर्स वर्सेस शशिकांत रुइया, 2004 सुप्रीम कोर्ट। चलो जी, बजरंग लाल रुइया, प्लेंटिव वर्सेस डिफेंडेंट, ठीक है जी। चलो प्लेंटिव्स वर्सेस डिफेंडेंट्स, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है,
अपील अपील के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं, कभी सोचो कि वो वापस एडजुडिकेटर की तरफ चल रहे हैं, अपील वाले पोर्शन पे आ चुके हैं। यानी कि एक से ज्यादा अपीलेंट्स हैं, है ना? यस नो? अगर अपील जाएगी तो एक से ज्यादा अपीलेंट है, ठीक है। डिस्टिंक्ट अपील्स डाल रखी हैं, अलग अलग अपील डाल रखी है, अपील्स फाइल्ड। ठीक है जी। इनमें से किसी एक की एनी वन अपील इज डिसमिस्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड। ठीक है जी, चलो जी, सही। तो ये जो ये जो बाकी लोगों ने डाल रखी है, उसका क्या रहेगा, उनका क्या रहेगा? ठीक है, सवाल समझ में आया? ठीक है ना? कई बच्चों ने लिखा नहीं है, मैंने नोट कर लिया है, उनसे सवाल है। हम्म, बताने के बाद है, अब लिखाई शुरू करो। हाँ जी, बताओ जी वर्षा, क्या रहेगा? जो ये बाकी अपील है, इनका क्या करेंगे? सिंपल, रेचुड़ी कट्टा लगा रहे हो या नहीं? सवाल समझ में आया? बताओ। यस नो लगेगा, नहीं लगेगा? हर्ष, लगेगा? लक्ष्य, नो, लग जाएगा। हाँ जी नदीप, नहीं लगेगा? नो, दोनों नो, नो, जटी, नो, वाई नो? ग्राउंड डिफरेंट है। हाँ जी, और बताओ, नो वाले। हाँ जी, नो, नो वाले। हाँ जी, नो वाले। हाँ जी, नो। सर जो अलग अलग फाइल हो रखी है, हाँ हाँ हाँ, वो अलग अलग डिसाइड होती है ना, उसका मार्क्स के ऊपर ठीक है। हाँ, मतलब सेम सेम, ग्राउंड डिफरेंट है। नहीं, मैं तो रीजन पूछ रहा हूँ ना, आपका भी यही रीजन है क्या, ये पूछ रहा हूँ। जरूरी नहीं है सर, खाली सिर्फ ग्राउंड डिफरेंट है बेस्ड हो। हाँ हाँ, पार्टी की अलग, हाँ मतलब इसमें टेक्निकल ग्राउंड कोई और हो, उनमें ना लगे वो टेक्निकल ग्राउंड। तो सर यस नो का सवाल फिर वो, हाँ रवि, मैं सेम लिख लेता हूँ। हाँ जी रवि, सेम केस होते हैं, मतलब सेम ओपन करनी है सब, हाँ मतलब सेम, आपका भी रीजन सेम, मतलब ये रीजन सबका सेम है। हाँ जी जेटी, आपका भी? हाँ जी, और नो वाले? विकी, लक्ष्य, यस है? विकी, यस, हाँ, सेम सेम, कट कॉपी पेस्ट। ठीक है जी, यस वाले?
हाँ जी, रेजुगेटर लगा रहे। हाँ जी, यस वाले। दर हरी क्या 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 रीजन? हाँ बताओ जरा क्या रीजन। मतलब ए सेम ग्राउंड, इसका ठीक वाइस वर्सा है। हाँ चलो एक रीजन। हाँ जी, दूसरा दूसरा भी ये रीजन। डिट्टो। हाँ तीसरा डिट्टो। पहले तो एक कोई प्रॉब्लम थी, फिर फिर जरूरी है क्या आपके हिसाब से ही सवाल है? हाँ जी, तो सवाल सवाल गलत है ना? रोड गलत, रोड की गलती है। हाँ जी, हाइपोथिकेशन, प्योर हाइपोथिकेशन। हाँ, डिस्टिंग अपील फाइल होंगी मतलब एक से ज्यादा है, 10 प्लेंटिफ 10 डिफेंडेंट। किसकी तरफ से अपील डाली आपने? चलो प्लेंटिफ की तरफ से अपील डाल देते हैं। मैंने बोला कि 10 अपील डल गई हैं, उसमें से एक अपील टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर डिसमिस हो चुकी है। कहा ये कहा बोला मैंने? क्यों नहीं डल सकती? 10 प्लेंटिफ ही तो है, तो डाल नहीं सकते क्या? आप भी अपीलेंट हो, मैं भी अपीलेंट हूँ, कल भी इसी बात पे दिक्कत हो रही थी। आप मेरे को रोक सकते हो क्या अपील डालने से? रेस्ट जुडिकेटा की एप्लीकेबिलिटी के लिए लिखवा है मैंने। अगर ग्राउंड सेम है, ठीक है ना, और कोई भी एक जो है अपील फाइल हो जाती है, और उसके अंदर अपीलेट कोर्ट की पावर क्या है कि सबके लिए डिसीजन या सबके लिए डिसमिसल कर सकती है कोर्ट। मैंने आपको ये नहीं बताया कि एक ही डालेगा, ये किसी भी एक्ट में नहीं पढ़ोगे आप। बेरट किसी को केस डालने से मना नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? 100 अपीलेंट है, 100 अपील डल सकती है, मना करेगा कोई? कोई मना नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन पे 1000 अपील डल सकती है, अगर हजार एप्लीकेंट। हाँ, बदल थोड़ी ना जाएगा, दो दो और 200 हो तो कोई बदल थोड़ी ना जाएगा, लोग थोड़ी ना बदल जाएगा। मल्टीपल अपील्स है ना जो, तो वो एक ही डिग्री से एनालाइज होगी। हाँ, तो अगर जो कोर्ट है वो एक अपील को डिसाइड कर देगी तो बाकी सब में फिर वही आ रहा है। हाँ, डिस्टिंक्ट होंगी नहीं अपील। एक 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 रीजन क्यों दे रहे हो मेरे को? तुम दोनों रीजन नहीं दे सकते। मैंने तुमको बताया है कि सेम है या डिफरेंट है। फिर एक सेकंड मगर, फिर जोर लगा रहे हो। हाँ जी, डन। मेरे को बजाय आप कोई एक साइड हाइपोथिकेट करने के, ठीक है जी, और मुझे आंसर देने के, आप मुझे ये कहते हैं कि अगर मैट्रिन, ध्यान सुनो इधर इधर जाओ, अगर मैट्रिन इशू, अगर ग्राउंड सेम है दोनों अपील का, ठीक है ना, तो रेजुडिकेटा लग जाएगा, और अगर ग्राउंड अलग अलग है तो रेजुडिकेटा नहीं लगेगा, है ना? बजाय दामिनी के एडवोकेट बन गए, एक वो चड्डा बन गया, एक वो बन गया, ठीक है ना? इस पे लिख के लेकर आओगे? आंसर बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना? इस पे लिखना। हाँ, ध्यान सुनो। हाँ जी, एक अपील, ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं डाल सकते? बिल्कुल डाल देगा, चलता रहे, कोई बात नहीं। अपील का राइट है। एग्जैक्ट क्वेरी पे आओ, आप एग्जैक्ट क्वेरी पूछो मुझसे। एग्जैक्ट क्वेरी आपकी ये है, आपके दिमाग में फिलहाल ये हाइपोथिकेशन चल रही है कि अलग अलग कोर्ट में, किसी को क्या पता डिसीजन अलग आ गया तो ऐसे कैसे हुआ। ये तो हाइपोथिकेशन, ये ठीक हाइपोथिकेशन ठीक है। नहीं नहीं, सिचुएशन, सिचुएशन पे कैसे नहीं, किसी दूसरे कोर्ट में कैसे आ जाएगा? अपीलेट कोर्ट तो एक ही होती है। ज्वाइन करेंगे और क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। क्या जज को खतरा नहीं होगा? सबसे ज्यादा खतरा तो जज को है।
एक ही अपील के अंदर एक ही क्वेश्चन के ऊपर दो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन आ गए। सबसे ज्यादा खतरा किसको? पार्टीज को है, जज को है। जज की तो नौकरी जाएगी, ठीक है ना। एक तरफ से तो दूसरा कोई दूसरा कोई चाउमीन थोड़ी ना खाता है, वो भी रोटी खाता है, ठीक है ना। एक तरफ की सोच के हम रह जाते हैं, दूसरी तरफ हम जा ही नहीं पाते। अच्छा, क्वेश्चन जरा ढूंढ के लेके आना, लिखो जरा। वेदर बताया तो दो, बोथ का क्वेश्चन लिखो। ये लिख कर लेके आओगे 7-8 लाइनें आप, ठीक है ना। आंसर मैंने बता दिया है, इसमें कन्फाइंड नहीं होना था, बस बेसिक मेंस का क्वेश्चन है। सही, चलो जी लिखो। वेदर डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा is applicable upon execution proceedings, execution proceedings, ठीक हो गया जी, डन। सवाल समझ गए, ढूंढना है आपने। वैसे क्या लगता है, एग्जाम्पल देखो। प्लेंटिव वर्सेस डिफेंडेंट सूट डिक्रीड, ठीक है जी, और डिक्रीड होने के बाद इसकी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग चलेंगी, बस ये एग्जाम्पल, और कुछ नहीं। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, जरूरी नहीं है कि पार्टी कर लें, ठीक है ना। सही, पार्टी डिफेंडेंट या फिर प्लेंटिव व्हाट्सएवर, ठीक है ना, जिससे जिसके फेवर में एग्जीक्यूट करवाना है, जिसके अगेंस्ट में एग्जीक्यूट करवाना है, उनमें से कोई एक स्टोन हेड है, ठीक है। तो क्या है, कोर्ट से एग्जीक्यूशन करवानी पड़ेगी। अगर पार्टी जाएंगी तो अभी तक तो सिविल सूट के लिए लड़ रहे थे, अब फिर क्रिमिनल भी हो जाएगा। सिंपल हो गया, सही। ढूंढना इसको जरा, आओ। सेक्शन 11 में कोई भी क्वेरी है तो बताओ। नहीं करवाई, चलो पोपट कर दिया। 6 और 7, चलो ये पूरा नहीं पढ़ा था क्या? अच्छा, कहां से पूरा नहीं पढ़ा? 5, 6, 7, 3 रहती है, बाकी तो बाकी डन है ना। चलो 5 देख लो जी। एनी रिलीफ क्लेम्ड इन द प्लेंट विच इज नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय द डिक्री। हमने तो क्लेम कर लिया, लेकिन कोर्ट ने ग्रांट नहीं किया, डिक्री में हमको नहीं मिला भैया। शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के पर्पस से बी डीम्ड टू हैव बीन रिफ्यूज, क्या डीम कर लिया जाएगा कि कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है, ठीक है जी, सिंपल। रिफ्यूज इन द सेंस, डिक्री आ गई, हमने जो है 10 क्लेम किए, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? डिक्री आई सिर्फ 5 क्लेम के लिए, ये जो 5 है इस क्लेम का जिक्र ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है किसमें? डिक्री में। तो क्या समझेंगे कि कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है। रिफ्यूज करने का मतलब है कि भाई ये नहीं मरते थे, आप आपको नहीं मिलना थे, डन। सोचो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, कैसे नहीं मिलते? पूछो कैसे नहीं मिलेंगे? रैंक 10 क्लेम किए हैं, रैंक कुछ नहीं किया, क्लेम कर चुका है वो, प्रूव नहीं कर पाया, ठीक है जी। मिसलेनियस हो गए,
ठीक है जी, कोई लेना देना नहीं है, खत्म, डन। हो सकता है सिर्फ इस सेक्शन के पर्पस के हिसाब से समझ रहे हो ये चीजें कि वो रिफ्यूज कर दी, बाकियों के पर्पस के हिसाब से नहीं समझोगे। स्पेसिफिक लिख दिया एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन कौन सी थी? बताओ जी। अपील में या सूट में? अलग से सूट डालेंगे सूट में। यस नो लगेगा लगेगा यस यस और यस हाँ जी यस हाँ जी यस 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 ठीक है जी। क्यों लगेगा? शाबाश, वेरी गुड। बढ़िया आंसर दिया। ये एक 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 करके, ये मेरे को, ये टैक्टिस मुझे पता है। हार्ड एंड फाइनल डिसाइड हो चुका है, ठीक है। और इशू डायरेक्शन और बड़े बच्चे हो या बड़े बचकाने हो ना तुम। ये सेक्शन 11 पूरा अप्लाई हो गया। सेक्शन 11 की एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हो, एक्सप्लेनेशन का सेक्शन 11 नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना? चलो जी, एक्सप्लेनेशन नंबर 6। वेयर पर्सन्स लिटिगेट बोनाफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पब्लिक राइट, जहां पर बंदों ने बोनाफाइडली क्या किसके लिए लिटिगेशन डाली है? पब्लिक राइट के लिए, अंडरलाइन कर लो। और ऑफ अ प्राइवेट राइट, या फिर प्राइवेट राइट के लिए, क्लेम्ड इन कॉमन फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स, ठीक है जी। कॉमन है, ठीक है जी, वो पब्लिक राइट। प्राइवेट राइट तो देखो सबके अलग अलग होते हैं, कॉमन एक हो सकता है, कॉमन का पब्लिक एक हो सकता है। ऑल पर्सन इंटरेस्टेड इन सच राइट, यस। अब जो पार्टी इंटरेस्टेड है, ठीक है जी, इन सच राइट शेल फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के पर्पस से, बी डीम्ड टू क्लेम अंडर द पर्सन सो लिटिगेशन, यस। जितनी भी पार्टी इंटरेस्टेड है, ठीक है जी, उनको भी डीम्ड कर लिया जाएगा कि उन्होंने भी क्लेम कर लिया है यहां पर, ठीक है ना? तो भैया अब क्लेम कर लिया है तो भैया आ जाओ ढंग से, और जो जो और क्लेम आपको करना है वो कर लो। किसके लिए बता रहे हैं? ये बता रहे हैं जो कल आपको होमवर्क दिया था, एक ऑर्डर 1 रूल 8 के लिए दिया था, याद है किसी को? याद दिया, मुझे पता है, मेहनती मानुष। दिखा, ठीक है ना? क्या रहेगा रिप्रेजेंटेटिव सूट में रेजुडी किट्टा के लिए? देखो क्या कह रहे हैं, ये तो अलग अलग हो गया, ये तो अलग अलग की बात थी। ये क्या कह रहे हैं कि एक केस एक डला है, ठीक है जी। इसमें पब्लिक राइट भी क्लेम कर लिया, इसमें प्राइवेट राइट भी क्लेम कर लिया, ठीक है ना? तो जितने भी बंदे इंटरेस्टेड हैं, एक ही केस में कर लिया, उनको डीम्ड कर लेगी पार्ट, इनको डीम्ड कर लेगी कोर्ट। डन है? क्या डीम कर लेगी? भाई ये भी पार्टी है, और अगर वो नहीं आए, उन्होंने ढंग से केस को फाइट नहीं किया, ढंग से क्लेम नहीं किया, ठीक है जी, और कुछ कंस्ट्रक्टिव में रह गया, कुछ डायरेक्ट और उसमें सब्सटेंशियली में रह गया तो रहेगा, वेरासिटी के टॉप लाइन। सिर्फ इस सेक्शन के लिए है, इस सेक्शन के बाहर के सेक्शन के लिए, ठीक है? क्या कोई ऐसा केस हो सकता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट राइट मांगे जाए? हो सकता है। क्या कोई ऐसा केस हो सकता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक राइट्स मांगे जाए? क्या कोई ऐसा केस हो सकता है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों माने जाए? अगर ऐसा केस हो जाएगा तो सारे को पब्लिक पब्लिक क्लेम के लिए डील, पब्लिक क्लेम के जैसा डील करेंगे सारे, ठीक है ना? और पब्लिकली अगर क्लेम करना है तो वही
वो फिर जैसे उसका कॉरम बनाया हुआ वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी तो प्रोसीडिंग का खतरा तो उनमें भी होता है। सिंपल हो गया। चलो जी, 7, द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शेल अप्लाई टू अ प्रोसीडिंग, जो प्रोविजन है ना इस सेक्शन के, शेल अप्लाई टू अ प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए भी अप्लाई होंगे यूं के यूं, ठीक है ना। चलो एक होमवर्क हटा देता हूं आपको। एंड references in this section to any suit, issue or former suit shall be construed as reference respectively to the proceeding for the execution of the decree, ठीक है ना। छोड़ दो इसको, बाकी बस इतना काफी है कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के लिए भी अप्लाई होता है। ठीक हो गया। सेक्शन 11 में कोई भी पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया, सर एग्जीक्यूशन वाले पॉइंट पे कोई केस है? एग्जीक्यूशन वाले पे कोई केस अभी आपको समझ में नहीं है, मैं इसी वजह से आपसे पूछ रहा था, क्योंकि मेरे को पता है आप कुछ ना कुछ हाइपोथिकेशन करने में लगे रहते हो, नहीं सर, वो जनरल हैबिट है आपकी। ये सिचुएशन का बन नहीं है। इस सिचुएशन में एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट करना नहीं बता रहा, नहीं इमेजिन नहीं कर पाया ना, हाइपोथिकेशन में लगे हुए। प्लेंटिव वर्सेस डिफेंडेंट डिक्री आ गई, ये बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है जी। एग्जीक्यूशन डालनी पड़ गई, एग्जीक्यूशन पिटीशन अलग से डलती है, डलेगी, ठीक है जी। उसका जो भी फैसला होना था वो फैसला हो गया, ठीक है जी, जो भी होना था डिस्पोज ऑफ गया एग्जीक्यूशन पिटीशन। तो सिंपल है, एक और एग्जीक्यूशन पिटीशन डल गई, समझे, ठीक है जी। अब इसके ऊपर रेस्टुडिकेटर का सवाल आ जाएगा, जैसे कि प्लेंटिव वर्सेस डिफेंडेंट सूट डिक्रीड, अपील आ गई, क्या अपील के ऊपर रेस्टुडिकेटर का सवाल करेंगे? नहीं करेंगे। प्लेंटिव वर्सेस डिफेंडेंट डिक्री आ गई, एग्जीक्यूशन पिटीशन डल गई, क्या इन दोनों के बीच में रेस्टुडिकेटर का सवाल करेंगे? नहीं करेंगे। तो एक जैसी सेम दो प्रोसीडिंग होनी चाहिए ना, डन, सही। चलो आगे सवाल बताओ, और सवाल बताओ, कोई भी सवाल पूछ सकते हो। सर एक लीड पिटीशन मिली, हाँ जी, डिसमिस हो गई, हाँ जी, फिर उसके बाद रिव्यू पिटीशन मिली, वो डिसमिस हो गई, उसके बाद एसएलपी डल सकती है। रिव्यू डला, हाँ, ये डिसमिस हो गई। डिसमिस। हाँ, चलो जी, अब क्या पूछ रहे हो, एसएलपी SLP डल सकती क्या डल सकती है, बताओ जी। सर ये रिव्यू ये रीड कहाँ डली है? हाई कोर्ट में डली है कहाँ? चलो सुप्रीम कोर्ट का ही लगा लेते हैं सारा का सारा, छोड़ो, मैं फिक्स कर देता सर डल सकती है। हूँ, रिव्यू भी सुप्रीम कोर्ट में है, वरना फिर ध्यान रखो रिव्यू फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन वाला फिर हाई कोर्ट के लिए नहीं है वो 138। बताओ जी, एडी वाले। रुको जी थोड़ी देर। नहीं लगेगा, चल जाएगी। नहीं नहीं लगेगा, हाँ, नहीं नहीं लगेगा मेरा सर्टिफिकेट, एक वोट आ गया। हाँ जी, कुछ तो बताओ, यस नो कुछ बताओ, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, नाम कट जाएगा स्कूल में। हाँ बताओ बताओ जल्दी बताओ। नहीं लगेगा, हाँ जी, नहीं लगेगा, हाँ जी हर्ष, कोई बात नहीं, फिलहाल यस नो बताओ, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ आइसोलेशन में सोचने की जरूरत होती है, सिर्फ आइसोलेशन में सोचो, नहीं लगेगा, हाँ जी नहीं लगेगा। विकास नो, हेमंत क्या लगता है? सर लग जाएगा सर। हाँ जी रवि नो, चलो एक केस लगा देता हूँ, हाँ जी नो, बताओ यस, कैसे? सर वो ना रिव्यू भी कर दिया, सेम मैटर होता है। हम्म, अब ये तो ध्यान में है एसएलपी में स्पेशली पिटीशन में जाता है। चलो आ गया, अब आपने अप्लाई कर दिया उसको, सेक्शन 11 की लैंग्वेज अप्लाई कर दी, हाँ जी बताओ नो वाले। हाँ जी नो वाले बताओ। तो यूनिवर्सल लॉ है सर, लगना चाहिए। हाँ आ गया आपका आंसर, आ गया आपका आंसर, आ गया, हाँ जी नो। भूषण
कोई है जो बताए रवि? सर ये तो आपकी इतना नहीं आता अलग अलग है। क्या अलग अलग हैं? ठीक है। विकास क्या लगता है? चेक चेक चेक। ग्राउंड गलत नहीं सारे। गलत की सर। यस। एसएलपी का आपका राइट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं, जिसने वो 136 में वो एसएलपी पकड़नी है वही बताएगा। ठीक है जी। फिर सवाल तो यही बन जाएगा, चलो इसको भी डिसमिस कर देते हैं। ये लो जी, हाई कोर्ट में लगाया, हाई कोर्ट में 134 ए का सर्टिफिकेट मिल गया, फिटनेस सर्टिफिकेट। सर इसको ग्राउंड गलत कैसे होगा? ये एसएलपी का ग्राउंड है, ये रिव्यू का ग्राउंड है, ये रिट का ग्राउंड ये ग्राउंड है। सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हो आप, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, ठीक है। सीपीसी डिसाइड नहीं करेगी, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन ये होता, अच्छा आप ये कह रहे थे क्वेश्चन तो मेरा ही है, मेरे से पूछो। अच्छा नहीं नहीं, क्वेश्चन ये बनता है रेस्यूडिकेट का। लिए लो जी, सुप्रीम कोर्ट से रिट थी वो डिसमिस हो गई, लो जी एक रिट और आ गई, इस पे करते फिर हम बात। रिट में भाई कौन सी आ गई? रिट में एक बार वो हैबियस कॉर्पस आ गई, एक बार सर्सियोरारी आ गई, तो थोड़ा ना लगेगा एक ही प्रकार की रिट। और हैबियस कॉर्पस में तो वैसे भी नहीं लगेगा, ठीक है। वहां तो आपको सर्कमस्टांशियली चेक करना पड़ेगा। ध्यान रखो, सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट की क्वेरी आते ही बेयर एक्ट से ऊपर उठ जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डील करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ध्यान रखो, ये रैंडम क्वेश्चन होते ही नहीं वैसे, सुप्रीम कोर्ट के विषय में कोई क्वेरी नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट का जो मन करेगा वो करेगा, बेसिकली तो ये, ठीक है ना। हाँ बस ये कि यूनिवर्सल लॉ है, इसके लिए हम बस इसको देख रहे हैं। सर हाँ फॉर्मल सूट में एग्जीक्यूशन का डिसीजन आता हाँ, फॉर्मल सूट में है, डिसीजन दे दिया कोर्ट ने भाई इसका एग्जीक्यूशन करवाओ, वो किस कारणवश नहीं हो पाता। थैंक यू। प्लेंटी वर्सेस डिफेंडेंट डिक्रीड एग्जीक्यूशन का एग्जीक्यूशन पिटीशन, ये लो तो किसी वजह से नहीं हो पाता, किस वजह से? मतलब या तो उस टाइम पे कोई और अथॉरिटी नहीं थी, मतलब जिसको ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हम स्पेसिफिक चल रहे हैं, रेस्यूडिकेट आते हम स्पेसिफिक चले, अब रैंडम नहीं चलेगा। एग्जीक्यूशन या तो डलती ही या फिर एग्जीक्यूशन नहीं डलती, सीधा सिंपल सी बात होती है। एक बार एग्जीक्यूशन डल गई, क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रूव थोड़ी ना करना है, ठीक है ना। और कोर्ट के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है, कोर्ट एक बार देखेगी भाई प्यार से मान रहा है कि नहीं मान रहा, उसके बाद तो फोर्स जाएगी, ठीक है ना, बस भर के पुलिस जाएगी बस भर के, ठीक है ना। किसी की हिम्मत नहीं है पुलिस फोर्स के सामने, क्यों? वहां तो पिटाई चिताई होगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो लगेगी, ऊपर से लाइफ स्पॉइल हो चुकी होगी सबकी, जिसने भी पुलिस पार्टी के ऊपर पथराव कर दिया या रोक दिया या बहसबाजी कर दी, गई वो पार्टी। प्रैक्टिकली तो नीड ही नहीं करते दोबारा नहीं, बेसिकली किस हिसाब से होता है, पहली बारी में एग्जीक्यूशन ध्यान से एक सेकंड। एग्जीक्यूशन बेसिकली डिसाइड करते समय कुछ क्वेश्चंस डिसाइड करने पड़ जाते हैं, ठीक है ना। लेट से एक बंदा था, ठीक है ना, ये जो अपना जजमेंट डेटर है, ठीक है ना, जजमेंट डेटर की जमीन लेनी थी कोर्ट को एग्जीक्यूशन करने के लिए, जजमेंट डेटर की जमीन ना लेके किसी तीसरे आदमी की, थर्ड पर्सन की गलती से उठा दी। जो जजमेंट डेटर का नाम है ना वो मिलता जुलता नाम है उसका, पिताजी को भी नाम मिलता जुलता, जो गलती से उठा ली, ठीक है जी। वो दौड़ा दौड़ा कहाँ आएगा, वो कोई अलग सूट थोड़ी ना डालेगा, वो वहीं एग्जीक्यूशन पिटीशन कोर्ट में जाएगा, एग्जीक्यूशन कोर्ट में जाएगा, ठीक है ना। वहां पे क्या बताएगा जी, मान लिया ठीक है लेकिन मैं वो नहीं हूं, कोर्ट ने क्या करा, आनन फानन में गलत डिसाइड कर दिया और उसकी जमीन अटैच करवा दी, सही।
डाल सकता है, बिल्कुल दोबारा से उसी कोर्ट में डाल सकता है, यही सेम सवाल डाल सकता है, बिल्कुल डाल सकता है कि देख लो जी एक बार चेक कर लो आप, रिव्यू डलवा दें, सीपीसी है, रिव्यू डल सकता है, ठीक है ना, BNSS नहीं है कि उसके अंदर रिव्यू ही ना हो, सीपीसी है, ठीक है ना, रिव्यू डलवा देंगे, देख लो एक बार फिर भी, मैं तो आधार कार्ड भी जमा कराऊं, जबरदस्ती मत करो जी, हम फिर अपील में जाएंगे, अब अपील के अंदर अपीलेट कोर्ट आपको नीचे से डायरेक्शन देगी, ऊपर फिर आपको बुलाएगी, आ जा भाई ट्रेनिंग के लिए, तू इतनी सी बात भी नहीं समझता, फिर दिक्कत हो जाएगी, देख लो एक बार फिर भी, रिव्यू कर लो आप, ठीक है ना, रिव्यू आते ही, ये अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, रिव्यू आते ही ध्यान रखो कोर्ट के कान खड़े हो जाते हैं, ठीक है जी, कोर्ट के एकदम एब्सोल्यूट कान खड़े, इस रिव्यू को थर्ड पर्सन रिव्यू कर सकते हो। तो वो थर्ड पर्सन नहीं, उसको इंक्लूड कर लिया गया, ठीक हो गया, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड सवाल एग्जीक्यूटिव कोर्ट ही करेगी, एग्जीक्यूटिव या फिर एग्जीक्यूशन कोर्ट करना ठीक रहेगा, एग्जीक्यूटिव तो गलत हो जाएगा, सिंपल हो गया, चलो जी और बताओ, अगर शाम की बनी तो भाई फिर मेरे को वहां रुकना पड़ेगा, अब मैं वहां पे रुकूंगा कहाँ, संडे को मुझे वहां रुकना पड़ेगा, फिर मंडे को मैं दर्शन करूंगा, कोई नहीं। अरे तुम तो देख लो एडी की भी क्लास लगानी है, हाँ जी लो जी, और बस इतना ही, वो तो मैंने डिलीट कर दिया, क्या था बोलो, क्वेश्चन बोलो, ये जो श्योर पालन का जरिया होगा, हाँ हाँ, सर इसमें जो साइंटिफिक एंड जो डिग्री आएगी सर वो टेक्निकल ग्राउंड पे वो डिस्मिस होगी, हाँ तो जो वो सब्सिक्वेंट अपील होगी डिस्मिस, डिग्री बोल रहे हो आप, डिग्री टेक्निकल ग्राउंड पे डिसमिस होगी, ठीक है, तो ये फिर इसके बाद आपने एक अपील डाली, अपील भी आपने डिसमिस कर दी टेक्निकल ग्राउंड पे, ऐसे बोल रहे हो, ठीक है जी, अब सबसीक्वेंट अपील के बारे में आप बात कर रहे हो, हाँ जी इसमें बताओ आप सवाल क्या है, मैंने हटा दिया ना वहां से, हाँ हाँ जी बताओ जी, रेसिड्यूकेटर लगेगा केस पे, यस नो, नो नो, दो आवाज आई बस, नो, तीन, नो, लक्ष्य, नो, हेमंत, रवि, शाबाश, क्यों, क्योंकि डिक्टेशन में लिखा है आपने, यस वो हार्ड एंड फाइनल डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि ऐसा आपने डिक्टेशन में लिखा है, शोधन सिंह के केस के अंदर, ठीक है जी, अगर सर अपील मतलब टेक्निकल ग्राउंड पे डिसमिस होती है तो रेस्ट ये लो जी, जो नीचे का केस था वो डिग्रीड हुआ है, ठीक है जी, अपील अपील टेक्निकल ग्राउंड पे डिसमिस हुई है, लिमिटेशन के ग्राउंड पे व्हाटसोएवर, ठीक है जी, उसके बाद सब्सिक्वेंट अपील आ गई, रेसिड्यूकेटर लगेगा, यस यस यस, 3 आवाज आई, यस 4, यस यस यस, क्यों, यस सीधी सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो भी टेक्निकल ग्राउंड हो उसकी तो सुनवाई करनी पड़ेगी, वरना फिर अपील ध्यान रखो, इवन चाहे सुप्रीम कोर्ट भी क्यों ना हो, ठीक है ना, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिसमिस इन लिमाइन, याद है, ये कोई जनरल हैबिट नहीं है, अगर सूट डिसमिस करना है, ठीक है ना, तो रीजन देना पड़ेगा, जब आप डिसाइड कर रहे हो तो भी तो रीजन दे रहे हो, जब आप नहीं डिसाइड करोगे तो भी रीजन दोगे, ठीक हो गया, हाँ जी, अपीलेट कोर्ट ये श्योर भी तो करेगी पुराना डिसीजन जो है कोई माना जाएगा। हाँ जो भी अपीलेट कोर्ट को डिसाइड करना है, पुराना डिसीजन मानना है, पुराना डिसीजन पलटना है या फिर नहीं पलटना है, व्हाट्सएवर, ठीक है ना, अच्छा
दो केस चल रही है। हाँ जी। ये उसी सेम डिपेंडेंट सेम प्लेंटी पर हम्म। कोर्ट ने दोनों सूट मर्ज कर दिए। एक सेकंड, क्या हो गया इसको? ये लो जी, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, सूट नंबर 1, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, सूट नंबर 2। मर्ज कर दिए सर दोनों। मर्जर का बात ही नहीं होगी, मर्जर की क्यों बात करोगे? कुछ अलग ढूंढना, डिसाइड करना। सेम केस है। सेम है ना, मर्जर का कोई सवाल नहीं। अब इसके ऊपर लगेगा रेस सब जुडाइस। ग्राउंड लोगों सर बाय चांस तो अब करेंगे, तो सेक्शन 10 में आ गया। अब करेंगे। अगर सेम टू सेम है, ठीक है ना, सेम टू सेम है तो एक को स्टे कर देंगे। अलग हो सर, ग्राउंड अलग हो। और अगर ग्राउंड अलग अलग हैं, इनको अगर इकट्ठा करने की जरूरत है तो इकट्ठा कर देंगे, वरना अलग अलग चल जाएंगे। अगर ग्राउंड अलग मर्ज कर दिए। हाँ चलो, मर्ज कर दिया, ठीक है। आपकी क्वेरी पे चलते हैं, मैं हटा रहा हूँ। हाँ जी, तो सर इनकी जजमेंट तो है ये डिग्री अलग अलग आएगी ना दोनों। हाँ जजमेंट क्या है? जजमेंट एक आएगी दोनों। मर्ज हो गया है ना, मर्ज हो चुका है ना, ठीक है जी। जजमेंट एक आएगी, ठीक है। डिग्री अलग अलग आएगी सर। क्यों? डिग्री भी एक ही आएगी, फिर मर्जिंग का फायदा क्या है? सर जैसे कोऑपरेटिव का डला हुआ है। मर्ज होने के बाद बताओ, सीधा सिंपल, ये कॉमन सेंस से बता देता हूँ आपको, ये तो इधर भी जाने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस की बात है। बताओ, मर्ज होने के बाद केस एक या दो? चलो मान लो 2 मान लेते हैं, तो ये 2 के अंदर कितनी 5-6 डिग्री होगी? दो प्रिलिमिनरी, 2 फाइनल, 2 पार्टली प्रिलिमिनरी, 2 पार्टली फाइनल, ठीक है ना, समझ रहे हो? तो इतने केओस में नहीं जाएंगे, इतनी टेक्निकलिटी नहीं क्रिएट करेंगे। मर्ज हो गया, बस बात खत्म, एक जजमेंट एक डिग्री, ठीक है ना। करना क्या कोर्ट को? सिर्फ इशू ही तो फ्रेम करना है, एक इशू और बनाओ, डिसाइड कर दो उसको। और डिग्री का जो पेज है उसके अंदर 1 2 2 4 लाइन और आ जाएंगी, एक क्या बोलते हैं ग्राफ जिसके अंदर कोश लगी है और आ जाएगा, बस जुड़ जाएगा, उसमें क्या है, ठीक है ना। डिग्री का पर्चा देखा ना हमने, आ जाएगा उसमें। डिग्री 2 बनाने का कोई विचार नहीं, 3 है बसा नहीं लगता। तो अदरवाइज जनरल केस में भी यही होता है। कोई विरला केस ऐसा होता है जिसके अंदर डिफेंडेंट डब्ल्यूएस फाइल करके ये बोलता है हाँ भाई ठीक है, जो ये प्लेटी बोल रहा है वो ठीक है। विरला कोई केस होता है, विरला, विरला समझते हो? एक्सेप्शन। सिंपल। नॉर्मल केस की भी बेसिकली यही ड्राफ्टिंग होती है। प्लेंटिफ अपना क्लेम डालेगा, जितने भी क्लेम डालने हैं, ठीक है जी। डिफेंडेंट आएगा, ठीक है जी, वो रिबट करेगा और अपना क्लेम डालेगा। जैसे ही अपना क्लेम डालेगा तभी तो वो डिनाइल होगा। अगर वो आके मनाही कर लेगा तो फिर इश्यू फ्रेम नहीं होंगे, ठीक हो गया। इश्यू भी तो फ्रेम करने हैं, इश्यू कैसे फ्रेम होंगे, ठीक हो गया। और बताओ, एक जबरदस्ती के सवाल मत बढ़ाओ, नहीं है तो मना कर दो कि नहीं है, आ गया बहुत बढ़िया, मास्टर जी आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। जबरदस्ती क्वेश्चन बनाने में लगे हुए, एक बात जी करे मान लो वैसे हो जाए। एक नंबर चल हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। जबरदस्ती क्वेश्चन टाइप ये बात है। गर्मी की छुट्टियां मनाओगी क्या? मैं तो सोच रहा हूँ मैं एडी की छुट्टियां कैसे करूंगा तुम्हारी। मास्टर को कह के जाऊंगा मैं, वो अपना वीडियो बना ले किसी तरीके से। मैं एक बार कह जाऊंगा आज टीचर को ना, ठीक है ना। ये सामान नहीं दे पाऊंगा ना मैं अपना। जैसे उनके पास लैपटॉप रहेगा तो मैं उनको बोल दूंगा अपना लैपटॉप ला के, ठीक है जी, और वो रिकॉर्ड कर लेंगे उसमें। हो सकता है? नहीं, रिकॉर्ड कैसे होगा? आपको तो दिख जाएगा, है ना। तो मेरे उसमें मेरे तो इसमें वो डला हुआ है, या फिर कोई रिकॉर्डेड लेक्चर ही होगा उनके पास, मैं पूछ लूंगा, है ना। हिस्ट्री वगैरह निपटा देंगे। अरे नहीं, अब डिजिटल हुआ है इतने सालों के बाद। मुकद्दर के सिकंदर, ठीक है ना। सिकंदर तो हारता है इधर, मुकद्दर के पोरस, ठीक है ना।
ये कहावत गलत है, लिटरली हिपोक्रेसी से भरी हुई कहावत है। ठीक हो गया, सही। चलो जी, डन बोल दो, हाँ हो गया। चल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सेक्शन 10 खोलो। रेस सब जुडाइस। रेस जुडिकेटा का मीनिंग, रेस और जुडिकेटा लिटर मीनिंग, रेस और जुडिकेटा। मारो मारो पर्ची मारो। जुडिकेटा जो एडजुडिकेटेड है, ठीक है। रेस, रेस केस, डिस्प्यूट, इशू। रेस सब जुडाइस जो जुडिकेट नहीं हुआ है, जुडिकेट नहीं हुआ अभी, तो सब जुडिकेशन में है, प्रोसेस में, ठीक है ना। बहुत सिंपल। सेक्शन के ऊपर ध्यान दो। नो कोर्ट शैल प्रोसीड, शैल प्रोसीड को बॉक्स बना लो, नो को बॉक्स बना लो। देखो जरा सेक्शन 11 से डिफरेंस आ गया। उसमें क्या लिखा था? नो कोर्ट शैल ट्राई, ट्रायल नहीं चलाएंगे, क्योंकि ट्रायल चलाएंगे तो फिर डिक्री जजमेंट आएगी, ठीक है ना। यहां पर क्या बोल रहे हैं? प्रोसीड, आगे बढ़ेंगे ही नहीं, आगे ही नहीं बढ़ेंगे हम तो। ट्रायल ट्रूल तो छोड़ दो, जिस समय पता लग गया कि भाई साहब सेम सूट चल रहा है, ठीक है जी, पेंडिंग है, स्टॉप, प्रोसीडिंग नहीं होगी आगे। विद द ट्रायल, किससे? ट्रायल के साथ। टू ऑफ एनी सूट, किसी भी सूट में, इन विच, जिसमें द मैटर इन इशू इज ऑल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू इन ए प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। ये जो मैटर इशू है, ये ऑल्सो मैटर इशू हो डायरेक्टिव सब्सटेंशियली कोई प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में, पहले से कोई डला हुआ सूट उसमें। बिटवीन द सेम पार्टीज, अगेन, or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other court in India, पूरे के पूरे देश में कहीं भी पेंडिंग, या तो सेम कोर्ट में, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक में ही हो, या फिर कहीं भी पूरे देश में कहीं भी पेंडिंग। हैविंग जुरिडिक्शन टू ग्रांट द रिलीफ, वही कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट की बात आ गई। और इन एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, या फिर कोई ऐसी कोर्ट है जो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया है। बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? अंडमान निकोबार की कोर्ट, लक्षद्वीप की कोर्ट, ठीक है ना। दादर नगर हवेली को तो अंदर डाल लिया गया, वो तो शामिल कर लिया गया, है ना। ये भी शायद पता नहीं पुर्तगाल की उससे थी ना, पुर्तगाल से छीनी थी। एस्टेब्लिश और कंटिन्यू, कौन सी कोर्ट है जो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया है, बट एस्टेब्लिश और कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एंड हैविंग लाइक जुरिडिक्शन और बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, या फिर इवन सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों ना पेंडिंग। Explanation: the pendency of a suit in foreign court does not preclude the court in India from trying a suit founded on the same cause of action. चलो जी, बट ये जो आपने रेस सब जुडाइस पढ़ा है, ये फॉरेन जजमेंट के ऊपर नहीं लगाएंगे आप। ये जो फॉरेन कोर्ट के अंदर जो ट्रायल पेंडिंग है, उनके ऊपर नहीं लगाएंगे। मान लो यूके की कोर्ट में केस पेंडिंग है, ठीक है जी, डाइवोर्स वाइवोर्स जो कुछ भी, ठीक है जी, यहाँ पर भी डाल दिया है, यहाँ का चलता रहेगा। ठीक हो गया, बहुत सिंपल, कोई इशू कुछ नहीं होगा। वो इंटरनेशनल कोर्ट है, वो वहां पर एप्लीकेबल हो जाए। अब हमारे मालिक नहीं है वो, पहले थे, मान लिया। बहुत सारे केसेस वहां यूके की कोर्ट से होकर आता था, ठीक है ना, बहुत सारे फैसले होके आते थे, ठीक है। आप दौड़ेगा। और सीधी सिंपल सी बात, चाहे यूके हो या फिर कोई भी देश हो, कल को तो पाकिस्तान भी अपने जगह कर देगा। हम मानते हैं क्या? हाफिज सईद है, हाफिज सईद को क्लीन चिट दे दी है पाकिस्तान ने। वो तो जब 26/11 के आतंकवादी अटैक के अंदर उसकी आवाज आ रही है, सब कुछ ऑलरेडी क्लियर है, प्रूव्ड है। और देखो कितना खाली मुल्क है। ये बोल दिया कि नहीं नहीं, ये बाबूजी तो हजरत आलम है, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है जी, छोड़ दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। फिर इधर से प्रेशर गया अमेरिका के ऊपर, अमेरिका ने 2 डांट मारी, हाफिज सईद अभी भी जेल में है, अभी तक जेल में है। और अल्लाह की रहमत ऐसी है कि बच्चे पैदा हो गए, क्योंकि पाकिस्तान में बच्चे अल्लाह ही देता है।
सिंपल। अगर सूट पेंडिंग है देश में कहीं पर भी, या फिर उसी कोर्ट में, या फिर बियॉन्ड इंडिया लिमिट में, बट कैसी कोर्ट है वो, एस्टेब्लिश एंड कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, कहीं पर भी पेंडिंग है, तो सूट के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, सूट को वहीं रोक देंगे। क्या लगा देंगे? जिसको क्या बोलते हैं हम? स्टे। स्टे। स्टे का लिटिल मीनिंग क्या होता है? रोक। बस बांध दिया। हाँ, ठहरना भी है, ठहरा देंगे। ठीक है, और बताओ। सिंपल। डन है, इसमें कोई सवाल? अच्छा, सेक्शन 10 और सेक्शन 11 के अंदर डिफरेंस नजर आ रहा है कुछ? बस ये एक्सप्लेनेशन याद रखना, क्योंकि सेक्शन 13, 14, 15 करेंगे, उसमें फिर ये टक्कर मारे। सेक्शन 11 डिसाइड होने के बाद, डिसाइड होने के बाद यस, सेक्शन 10 सेक्शन 11 जो है, एक बार सूट डिसाइड होने के बाद वो सूट पुनः फाइल हो जाए, तब रेस जुडिकेटा लगाएंगे। एक जैसे ही केस, सेम पार्टी, सेम मैटर इशू, डायरेक्टली सब्सटेंशियली, ठीक है जी, एक समय चल रहे हो, तो एक एक केस को, दोनों को नहीं करेंगे, एक को स्टे करेंगे। ठीक है ना, कभी दोनों को स्टे करवा दो। सर, हाँ जी। अगर मान लो जैसे सेम पार्टी है, उनमें से एक पार्टी अपना नाम बदल ले, हम्म, तो सर टाइटल तो चेंज ही हो गया सर इसका। हाँ, तो सेम पार्टी नहीं हुई। तो इस और बाकी सब फैक्ट सेम। बाकी मतलब तो कोई सिंगल बात नहीं। बॉर्डर अच्छे थे। अब इस देखो, तरह या की तो बातें लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? या तो ये ट्रायल स्टेज पे पता लग जाएगा, नहीं तो बाद में जब एग्जीक्यूट कराओगे, क्योंकि कोई ना कोई तो एग्जीक्यूट करानी पड़ेगी। सर प्लेंटिफ भी तो नहीं बताएगा कि सेम पार्टी है। बिल्कुल, सामने वाली अपोजिट पार्टी भी तो बैठी है, अपोजिट पार्टी नहीं बैठी इसका कहने का मतलब मीनिंग ना, ऐसा नहीं, इतना हाइपोथेटिकल मत करो। फिर देखो, सब कुछ मिला ही हुआ, तो फिर वो दिक्कत ही नहीं आएगी, हो जाएगा। ठीक है ना, फिर अन्याय नहीं हुआ। अभी तो डर क्या है कि दो ओपिनियन आ जाएंगे कोर्ट के, और ध्यान रखना, दो एक जैसे ओपिनियन, तो दो ओपिनियन बोलेंगे क्या? एक बोलेंगे उसको। दो ओपिनियन का मतलब ये है कि बिल्कुल कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर। एक केस के अंदर बोल दिया कि भाई प्लेंटिफ ये केस जीत गया, ठीक है, दूसरे केस के अंदर बोल ना डिफेंडेंट ये केस जीत गया। ठीक है ना। अगेन बताओ, कैसे मिली हुई पार्टी? नहीं, ध्यान रखो, ये अब सिविल में रहेगी, इसके बाद हम वो करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। जब आप सवाल क्रिएट करोगे, ठीक है ना, तो आपको अपना कॉग्निजेंस अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में बहुत गलतियां करते बच्चे, मतलब उठा के कुछ सवाल पूछ लेते, फिर उनको उनका सवाल समझाना पड़ता है, भाई क्या बोल रहा है ये देख, तो होता अच्छा सर, चलो मैं अपना सवाल वापस लेता हूं। सही। बनाओ, डिफरेंशिएशन करो। ले भाई, रोहतक से 10:30 बजे की ट्रेन। भाई वो भी सभी का आने का नहीं होता। मेरे कुछ नॉन भी थे, किसी ने भी कॉल नहीं उठाया कल गुजरात में ना। हाँ जी, डिफरेंस करो जरा, रेस जुडिकेटा और रेस सब्जुडाइस में दो ही है बस। ठीक है ना, उसके हिसाब से 3 कॉलम बनाने ना। हाँ, पहले रेस जुडिकेटा लिख लो, पहले बेसिक्स, फिर रेस जुडिकेटा, फिर रेस सब्जुडाइस। हाँ, बेसिक्स कैसे बता देता हूँ।
लाइन के लिए पढ़ना, सीधी लाइन के लिए इस तरीके से पेज होता है आपका। यहाँ पर बेसिक्स लिखोगे आप, एक लाइन यहाँ खींचोगे, एक लाइन यहाँ पे खींचोगे, यहाँ पे रेस जुडिकेटा, यहाँ पर रेस सब जुडाइस, ठीक है ना। बेसिक्स आप लिखना, ठीक है ना। सिर्फ एक वर्ड लिखना होता है, एक या दो वर्ड। या हाँ लिखो, पहला बेसिक्स प्रोविजन, अपने आप लिख लो। रेस सब जुडाइस में भी लिख लो, लिख लिया। चलो जी, दूसरा डिफरेंस लिख लो, रेस जुडिकेटा में लिखो, इट अप्लाइज अपॉन मैटर्स ऑलरेडी एडजुडिकेटेड। ठीक है जी, बताओ रेस सब जुडाइस में क्या आएगा। यस लिखो, अप्लाइड अपॉन रेस सब जुडाइस में, अप्लाइड अपॉन मैटर्स पेंडिंग ट्रायल। बिटवीन प्रोसीडिंग बोल सकते हैं। ना बिटवीन प्रोसीडिंग क्या ना थी, बिटवीन अगर आप बताओगे तो के बीच में बताना पड़ेगा, आप किस चीज के बीच में बताना पड़ेगा आप, ठीक है ना। ये ग्रामर का रूल है। अगर आप पेंडिंग बोल दोगे तो पेंडिंग है, पेंडिंग है बस, किसी भी चीज किसी और खाम का पेंडिंग है। चलो जी, तीसरा लिखो जरा, रेस जुडिकेटा में लिखो, इट बार्स द ट्रायल ऑफ द सूट। which have been decided earlier। ठीक है जी, बताओ रेस्ट सब्जुडाइज में क्या लिखोगे। एक बार तो सेम बार्स द ट्रायल of suit which is already क्या pending trial। लिखो, of a suit which is already pending trial। ठीक हो गया, सिंपल। बताओ जी, रेस जुडिकेटा, बड़े ध्यान से इसमें नीचे लाइन खींच लेना, एक दूसरे के अंदर मत घुसाना, ठीक है ना, ये अलग से दिखाई देना चाहिए। बताओ रेस जुडिकेटा और ऑर्डर 2 रूल 2 की लैंग्वेज में क्या फर्क है। डिफरेंस करना है रेस जुडिकेटा में यानी सेक्शन 11 में और ऑलरेडी ऑर्डर रूल 2, ठीक है जी। डेटा उस केस पे बार लगा रहा है जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, और ऑर्डर टू रूल जो है वो उन केस पे बार लगा रहे हैं तरफ से कि जो मांगने चाहिए थे उसने मांगे। मतलब एक तो लैंग्वेज का ही होगा फिर, और ठीक है मान लिया। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा, जो ऑन द वेरी फेस ऑफ इट दिखाई देता है, सेक्शन 11 और ऑर्डर 2 रूल 2। देखो सब्सिक्वेंट सूट पे लग रहा है, लेकिन जो ऑर्डर 2 रूल 2 है हाँ। वो मेन जो सूट करना चाहिए पहले वाले वो उसी पे लग रहा है। यस सही बात है, बट ध्यान रखना वो बार वो दूसरे पे लगा रहा है, जो ऑर्डर टू रूल टू है बार दूसरे पे लग रहा है वो। सर, इसमें अपनी मर्जी से भी यूज कर रहा है अपने राइट्स को, हाँ, और उसमें और उसमें तो अपना राइट भी करता तो ऑलरेडी अप्लाई कर रहा है। नहीं, फिर बना नहीं ना, डिफरेंस कैसे बना। Subsequent लैंग्वेज का के लिए डिफरेंस तो देखो, लैंग्वेज का डिफरेंस मान लिया, लैंग्वेज हम लिखेंगे दोनों प्रोविजंस की डिफरेंस अपने आप क्रिएट होंगे, मान लिया, ठीक है ना। बट इसको कैसे मानेंगे, सर इसको ट्राई कर उसमें रेलिंक्विश कर सकते हैं,
इसमें रेलिंक्विश अपनी मर्जी से कर सकते हैं, उसमें सर सेक्शन क्योंकि डिफरेंस का ग्राउंड क्या है, रेलिंक्विश है। अब सेक्शन 11 के अंदर रेलिंक्विश नहीं कर सकते। उसमें सिर्फ क्लेम की बात होगी सर। मैं रेलिंक्विश के ग्राउंड के ऊपर डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ। देखो जब कभी भी आप डिफरेंशिएशन लिखोगे, ये हम मेंस के लिए करते हैं, ये अगेन कई सारे बच्चों को जिन्होंने मेरे को लिख के दिखाया है, मैंने उनके नोट्स पे उनके राइटिंग में नोट पक्का डाला होगा कि आपकी राइटिंग जो है ना वो कनेक्टेड होनी चाहिए, कटमा नहीं होनी चाहिए। बचपन में किए ना कटमा पाड़े, ठीक है ना, जब एक दूसरे एक 1 2 3 4 लाइन में लिखे होते हैं, ऊपर वाली लाइन से और नीचे वाली लाइन का कोई लिंक होता है कटवा पाड़ों में? नहीं। लेकिन जब आप मेंस लिखोगे तो ध्यान रखना पहले वाली लाइन का और ये जो आप लाइन लिख रहे हो इसका कनेक्शन होना चाहिए। बेसिस में तो हम कर देंगे क्या, रेलिंक्विशमेंट, और हम क्या बता रहे हैं, फिर लैंग्वेज डाल रहे हैं। हम मूर्ख हो सकते हैं, एग्जामिनर जो क्वेश्चन चेक करेगा आपका, ठीक है ना, वो मूर्ख नहीं है, वो काट देगा। तो अननेसेसरी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। सर इसमें तो ये करें मतलब जो सूट डिसाइड हो चुका है तो फिर नया सब्सिक्वेंट सूट नहीं आएगा, उस सूट को ही बाहर कर देंगे। और ऑर्डर टू रूल टू में कह रहे हैं कि अगर मतलब जो कुछ भी मांगना रह गया ना, फिर अब किसी नए सूट के थ्रू नहीं। मैं तो कह रहा हूँ देखो जो लैंग्वेज का डिफरेंस है वो बता दिया है। इसमें ना इसके अलावा मैं मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, बड़े ध्यान से अपना दिमाग खाली करो। मेरा क्वेश्चन ये है, एक बहुत मोटा डिफरेंस है जो आपको ऑन द वेरी फेस ऑफ इट दिखाई देगा। दूसरा डिफरेंस जो है भूषण जी ने बताया, क्या बताया आपने? तो सर उसमें एम का है सिर्फ पॉइंट। भाई वो जब सूट डलेगा तो सूट के ऊपर ड्यूटी है, ठीक है ना। ये तो, और जो रेस्ट जुडिकेटा में तो क्या है, ये तो जो सेकंड केस डल रहा है, ठीक है ना, उसके ऊपर बार की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ सर इसमें ऑर्डर टू रूल 2 में सर खाली प्लेंटिफ की बात हो रही है, और जो रेस्ट जुडिकाटा में हो रही है मतलब केस डालने की, वो प्लेंटिफ भी डाल सकते हैं और डिफेंडेंट। शाबाश, ये है। ऑर्डर टू रूल 2 में ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ की है, ठीक है जी। रेस्ट जुडिकेटा सब्सिक्वेंट सूट पे डलेगा। अब वो सब्सिक्वेंट सूट चाहे प्लेंटिफ ने डाला हो चाहे डिफेंडेंट ने डाला हो, ठीक है ना, चाहे परफॉर्मा डिफेंडेंट ने डाला हो, ठीक हो गया। लिखो जरा, डिफरेंशिएशन करो, 3 कॉलम बनाओ। सर यूनिवर्सलनेस का हो सकता है, जैसे रेजोल्यूट है कि यूनिवर्सल होता है, ऑर्डर टू स्पेसिफिकेशन बेसिस की नहीं, अगर रूल ऑफ लॉ के हिसाब से करोगे तो दोनों फिर सेम बात कह रहे, ठीक है ना। सेक्शन 11 भी सेम ही बात कह रहा है कि भाई एक ही केस के अंदर सब कुछ मांगना था, क्योंकि एक्सप्लेनेशन 4 आ गया, ठीक है ना। चलो जी लिखो जरा, रेस्ट जुडिकेटा में लिखो, आरजे करके लिख लेना। रेस्ट जुडिकेटा रेफर्स टू अ प्लेंटिफ / defendant's duty to bring forward all the grounds of attack and support of his claim. ठीक हो गया। चलो, ऑर्डर टू रूल 2 में लिखो सेम, ऑर्डर टू रूल 2 only requires a plaintiff to claim all reliefs following from same cause of action। ठीक है जी। नंबर 2 लिखो, रेस्ट जुडिकेटा binds both of the parties, that is plaintiff / defendant, plaintiff और defendant करना in subsequent suit। ऑर्डर टू रूल 2 के अंदर लिखो, ऑर्डर टू रूल 2 binds only the plaintiff, बस, फुल स्टॉप।
ठीक है जी। तीसरा डिफरेंस लैंग्वेज का है, ठीक है ना। पूरे सेक्शन 11 का मेन क्लोज, ठीक है जी, डन। मेन क्लोज एक ही, कोई नंबर तो है नहीं उस पे, एक्सप्लेनेशन का नंबर है। तो सेक्शन 11 का मेन क्लोज और ऑर्डर टू रूल टू सारा एक, ये डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, इतनी जगह छोड़ दो। कट कॉपी पेस्ट करना है तुम्हारी इच्छा, वरना कट क्रैप करो उसको, बिल्कुल छोटा करो, ठीक है जी, और डालो। चलो जी, नेक्स्ट डिफरेंस। जितनी जगह छोड़ के आपको लगता है कि इतने में हम पूरा कर देंगे, उतनी जगह छोड़ दो, ठीक है जी। नेक्स्ट डिफरेंस पे आ जाओ। ये ध्यान रखना, ये भी नेसेसरी पार्ट है। जिन स्टेट के अंदर 5 नंबर के, 3 नंबर के, 7 नंबर के इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वहां पर ये मैंडेट है, ठीक है ना। एक मेन प्रोविजन हो गया, मेन प्रोविजन के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्निकल थे हमने निपटा लिए, ठीक है जी। एक यहां से आएगा डिफरेंस, एक आधा आएगा ही आएगा। जैसे गुजरात में आदत है क्या, 3 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन बीच में घुसाने की, ठीक है ना। गुजरात के मेंस में तो एक एक नंबर के भी आते हैं, ट्रू और फॉल्स के भी आते हैं मेंस में, ठीक है ना। ऐसे ही गुजरात के अलावा कई स्टेट में आते हैं, ठीक है जी। सीनियर में इसके में क्या बोलते हैं, मैं तो अभी भी लिख रहा हूँ मध्य प्रदेश में, ठीक है जी, छत्तीसगढ़ में लिख रहा हूँ ये, ठीक होगा। जहां छोटे नंबर का है तो यह ध्यान रखना आएगा क्वेश्चन, क्यों, उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी रेस जुडिकेटा का एक क्वेश्चन और पूछने, क्योंकि रेस जुडिकेटा के क्वेश्चन बड़े ही बनते हैं। नॉर्मल पूछ लेंगे डिफाइन रेस जुडिकेटा, तो लिखना पड़ेगा भाई, नहीं लिखना पड़ेगा। 10 नंबर से तो नीचे का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा ही नहीं, ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन 4 के ऊपर पूछेंगे तो भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, 10 नंबर से नीचे का नहीं मिलेगा, ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन 8 पूछेंगे, 10 नंबर से नीचे का नहीं मिलेगा। सिंपल हो गया, सिंपल रहेगा, लेकिन ये पूछ सकते हैं सिंपल। चलो जी, जो बच्चे पुराने हैं उनसे सवाल है, बताओ जी, ये एस्टोपल क्या होता है? ये एस्टोपल एस्टोपल क्या है? सर जो पार्टी ने अगर पहले कुछ कहा है ना, और अब उससे कुछ अपोजिट मांग रहा है, तो उसको एंटरटेन नहीं करेंगे, उसमें बहुत 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 बेसिक बता दिया, यही मैं चाहता हूँ। बहुत बेसिक है, गलत नहीं है ये, लेकिन अगर आप इसको लिखोगे ना तो एंटरटेन नहीं हो। आप अपनी बात में ठीक हो, लेकिन लेट से मैंने मेंस के अंदर लिख दिया, तो वो जो चेकर है, जो चेक करेगा, जो एग्जामिनर है, वो कंसीडर ही नहीं करेगा कि आपने क्या लिखा। हाँ जी, ऑलरेडी वो क्लेम कर चुका है या उससे उसको स्टॉप पे कर दिया जाएगा? नहीं, बहुत मेन पॉइंट जो हर्ष ने छोड़ दिया है वही आपने छोड़ दिया, बहुत मेन पॉइंट है। तो सर उसने कहा है ना अपने केस के अंदर में, सर उसे उसकी बात से पता नहीं लेंगे सर, इसके अंदर होगा। बहुत मेन पॉइंट छोड़ दिया। हाँ जी, और पुराना बच्चा विकास। हाँ भाई चिट्टू, यही कट कॉपी पेस्ट कहें, क्या नहीं आया ना। हाँ नो जी, सर एस्टोपल में वो मतलब बाद में अमेंड तो कुछ आया था। मैं तो पहले ही पूछ रहा हूँ, पहले ही बताओ। कहते हैं उसने आसना, इसकी उसकी उसका उसका, इसके ये बंद करो। जब एक पार्टी, ध्यान से सुनो, आपने जो मेन पॉइंट छोड़ दिया इसके अंदर, जिसकी वजह से आपकी डेफिनेशन ठीक नहीं होगी किसी भी तरीके से। मैं तो समझ गया क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन ठीक नहीं होगा। जब एक पार्टी, ठीक है जी, कोई भी चीज क्लेम करती है, रिप्रेजेंट करती है, या फिर रिप्रेजेंट होने देती है, और इस रिप्रेजेंटेशन के बाद ऑपोजिट पार्टी आपकी रिप्रेजेंट के ऊपर विश्वास करके अपना जो एक्शन लेना था वो एक्शन ले लेती है, उसके बाद आपके ऊपर एस्टोपल क्रिएट हो जाएगा, और आपको आपकी उस पुरानी रिप्रेजेंटेशन, पुरानी स्टेटमेंट और पुराने क्लेम से फिरने नहीं दिया जाएगा। दिस इज द एस्टोपल। सामने वाली पार्टी का विश्वास करके अपना एक्शन लेना जरूरी है। मैं प्लेंटिफ हूं, तुम डिफेंडेंट हो ना, तुम प्लेंटिफ हो, मैं डिफेंडेंट हूं, ठीक हो गया ना। वो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूं। तुम प्लेंटिफ हो, मैं डिफेंडेंट हूं, ठीक है जी। तुमने प्लेन डाली, मैंने डब्ल्यूएस डाल दी, डब्ल्यूएस में मैंने दे दिया एडमिशन, ठीक है ना। मेरा एडमिशन आपने देख लिया,
एडमिशन देख के आपको ये क्लेम, आपको ये विश्वास होगा भाई इसने तो एडमिशन कर दिया, अब मैं एडमिशन से नहीं कर सकता क्योंकि आपने वो देख के और अपना एक्शन ले लिया। सही, आप क्या एक्शन लोगे? आप प्लेंटिफ, आप क्या एक्शन लोगे? आपने मेरा एडमिशन देख लिया वर्षा, क्या एक्शन लोगे आप प्लेंटिफ? अच्छा, सर मैं प्लेंटिफ में आपने एडमिशन कर दिया तो सही है, फिर आपकी तरफ से क्या एक्शन है? अपने आप हो जाएगा। अभी तो केस चल रहा है, अभी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। हाँ जी रवि, उसको ग्राउंड बना देंगे फिर अपना उसको ग्राउंड नहीं बनेगा, एडमिशन है, डिस्प्यूट ही नहीं है। हाँ भाई संदीप, सर हम क्या फेवर में जाने ओवर पॉइंट साइड कर देंगे। यही एक्शन लिया आपने कि हम उसके ऊपर डिस्प्यूट करेंगे ही नहीं, कोर्ट उसको इशू बनाएगी ही नहीं। समझ रहे हो? केस नहीं इशू बना नहीं, अब इशू बना नहीं, मेरे को पता लगे ले ये तो इशू बना ही नहीं, अब मैं कोर्ट में आगे चल के मैं मना कर दूंगा, नहीं मैं मना नहीं कर पाऊंगा, मेरे ऊपर एस्टोपल क्रिएट हो चुका। क्योंकि इसके अलावा क्या एक्शन लेते हैं आप? एग्जीक्यूशन तो बाद में होगा, पहले तो केस चल रहा है। सबसे पहले तो जज को ही बता दो। ठीक है ना, सबसे पहले तो अब डिस्प्यूट क्रिएट करना है। ठीक है जी, ये आप या फिर आपका एडवोकेट की ड्यूटी बन जाएगी वहां पे जब इशू फ्रेम होने वाले का दिन हो, ठीक है ना, उस दिन जो बहस होगी उस दिन कोर्ट को बताएगा ये इशू बनेंगे जी, हमको ये पर्टिकुलर क्लेम चाहिए। जो मैंने एडमिट कर लिया वो क्लेम थोड़ी ना करोगे आप, वो तो ऑलरेडी आपका है क्योंकि वो तो डिस्प्यूट ही नहीं है। समझ पा रहे हो? कुल मिला के सर केस खत्म हो जाएगा। जरूरी नहीं है। जो मकसद, हाँ वो इशू नहीं रहेगा। वही ठीक है ना, अब मैंने ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया या मैंने ऐसी स्टेटमेंट दे दिया, मैंने ऐसा रिप्रेजेंटेशन होने दी, ठीक है जी, वो होने के बाद सामने वाली पार्टी का आपका एक्शन लेना उस रिप्रेजेंटेशन के बाद, मेरी रिप्रेजेंटेशन को बिलीव करके, ये सबसे जरूरी पॉइंट है एस्टोपल। ठीक है ना, क्योंकि एस्टोपल आते ही आपके माइंड में क्वेरी नहीं चाहिए कि किस पॉइंट पे एस्टोपल, वो वाला पॉइंट जिसको रिप्रेजेंट किया गया, जिसको विश्वास करके एक्शन लिया गया। ठीक है ना, बताओ जरा क्या रेस जुडिकेटा से मिलता जुलता है क्या? अब सवाल पे आते हैं। यस सर। अभी डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, डिफरेंस तो बाद में करो, यस सर। पहले मिलता जुलता तो बना ले। जब जैसे रेस जुडिकेटा भी तो मिलता जुलता है, ऑर्डर टू रूल टू भी तो मिलता जुलता है, तभी तो डिफरेंस की बात आती है। लेना देना ही कोई ना, तो फिर डिफरेंस की क्या बात आएगी? ठीक है ना, बिल्कुल है। अब मुझे ये बताओ कि क्या मिलता जुलता है? जैसे पहले उसने एडमिशन दे दिया था, हाँ ठीक है, एस्टोपल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डगलस ने फाइट किया, हाँ बाद में उसको लगता है कि नहीं ये तो नहीं करना चाहिए हमें, हम्म, क्योंकि उसके बेस पे आगे इशू फ्रेम नहीं हो पाएगा, जो कंटिन्यूस के हिसाब से एक्शन ले लिया, ठीक है जी, तो वो बाद में चेंज करना चाहता है उसको, ये करवा के फिर क्लास ओवर कर देंगे 11:30 बजे पूर्व क्लास। इसलिए उस पर रूल ऑफ एस्टोपल लग जाएगा। हाँ एस्टोपल तो लग गया, अब रेस जुडिकेटा से कैसे मिलता जुलता है? इसी तरीके से होना, क्योंकि वो दोबारा से उस चीज पे नहीं आ सकता अगर उसको मतलब कहने का कि एस्टोपल भी एक प्रकार का बार है, ठीक है ना, रेस जुडिकेटा भी एक प्रकार का बार है। कैसा? कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को लेकर ही बार है, रेस जुडिकेटा भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को लेकर बार है, एस्टोपल भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को लेकर बार। ठीक है जी, ये पॉइंट डिफरेंशिएशन जो है, मेरे को ये बताओ कि सेक्शन 10 के ऊपर लिखना है, लिखना है? ठीक है, तो फिर जो भी दिन रहेगा, ठीक है ना, उस दिन सर फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना, क्या पूछना है। आज ना करो। समझाना पड़ेगा ना। याद है चीजें? मैं एक डेट पौने पेज कर, हम लिख के लिए सर, हम लिख के लिए आएंगे, हम उसमें आके समझा देंगे, टाइम भी बच जाएगा तो। ठीक है जी, क्योंकि इसके बाद फॉरेन जजमेंट निपटाएंगे और जैसे ही रेस जुडिकेटा निपट जाएगा, ध्यान रखना स्पीड बढ़ जाएगी, ये ध्यान केस रखना। लो है तो हाँ जी, किसमें? 10 में ना कोई केस हो, फिर इस पे ऐसे निकालना। फिर ऐसा करो होमवर्क ले जाओ, सेक्शन 10 पे लिख लो, ठीक है। चैट जीपीटी मत करना, इतना लेवल मत गिराना। चैट जीपीटी का सेवन करने, जीपीटी क्या होती है? चैट जीपीटी होती है क्या? किस पे ना, ये मैं लिखूंगा, और भी रहता है अभी तो डिफरेंशिएशन और भी है, अभी तो आप छोड़ दो, एक पेज तो कम से कम छोड़ो आप,